Good morning, students. In this video, we are going to discuss about the people of Neolithic age. We have already discussed about two ages, Paleolithic and Mesolithic. In Paleolithic age, human being was a hunter and food gatherer. Okay. And in Mesolithic age, he started agriculture work, he started a settled life, he just made his huts near the river banks. Okay. Now, what happened in Neolithic age? Neolithic age में क्या developments हुई, क्या changes आए? Let's read about this in this video. Neo means new. During this period, man prepared new stone tools. नए stone के tools बनाए गए, okay, and which were harder and stronger. These tools are harder than the previous tools. Okay. Now human being become a skilled tool maker. He started polishing and grinding his tools and weapons. फर्स्टली जो टूल्स थे वो बहुत क्रूड थे, बहुत खुरदरे से थे, हार्ड थे, एंड दे वर नॉट पॉलिश्ड. ओके. एंड नाउ दीज टूल्स वर पॉलिश्ड एंड इनको ग्राइंड किया गया था, इनको प्रॉपर शेप दी गई थी. हिज वेपन्स इंक्लूडेड स्टोन एक्स, नाइव्स, स्पीयर, हार्पॉन्स, वुडन बोज, स्टोन टिप्ड एरोज. अब यहाँ पर उन्होंने एक्सेस बनाना स्टार्ट किया, नाइव्स, स्पीयर्स, ठीक है, बोज एंड एरोज, ये सब कुछ दे स्टार्टेड मेकिंग फॉर देयर hunting. Okay. The remains of such tools have been found in different parts of the world. The places related to the Neolithic age in India are Burzahum, Mehergarh, Chirand, Daujli, Hading, Halor and Koldiwa. These are the places in India. Burzahum में मेहरगढ़, चिरांद, दाउजली, हदिंग और हल्लूर, कोल्दिहा, इस तरह के एरियाज में न्यूलिथिक एज के रिमेन्स हमें मिलते हैं. न्यूलिथिक man started growing grains like rice, wheat, etc. Now they started agriculture work properly. They started growing rice and wheat just like us. He regarded earth as his mother and worshipped it. We also call earth धरती माता बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो अर्थ को एज अ मदर हम रिगार्ड देते हैं. सेम न्यूलिथिक पीपल ऑल्सो रिगार्डेड अर्थ एज देयर मदर, कि ये जो अर्थ है ये हमारी मदर है, ये हमें हम फूड प्रोवाइड करती है, खाने को देती है, रहने को दे रही है, तो इट इज जस्ट लाइक आवर मदर. ओके. एंड दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ जस्ट लाइक अस. वी बिलीव दैट देयर इज अ हेल एंड एक स्वर्ग है, एक नर्क है, ठीक है. तो सेम हम बिलीव करते हैं कि मरने के बाद, डेथ के बाद भी किसी दूसरे लाइफ में, किसी दूसरे लोक में हमें जाना पड़ता है. तो सेम विद द न्यूलिथिक पीपल, दे बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ, कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर द डेथ. व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल दे बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ. ठीक है. So they buried the dead people with their things जो वो अपनी लाइफ में यूज कर रहे थे, whether these are clothes or pots or their ornaments और some जो fruits थे, ठीक है, grains, ये सब चीजें वो dead person के साथ ही दबा देते थे. When they buried a dead person, तो उसके साथ ही ये सब चीजें भी वो रख देते थे. ठीक है. कि जब वो दूसरी जगह पर जाएगा, डेथ के बाद जब वो दूसरे एरिया में जा रहा है, तो वहां पर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ठीक है.
The dead were buried along with the objects like beads, pots, tools, etc. that they used in their life. जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में यूज़ की वो सारी वो डेड पर्सन के साथ ही buried करते थे, दबा देते थे. It was believed that they might need them in another life. जब वो डेथ के बाद दूसरी लाइफ के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ नहीं होगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करेंगी उन्हें जीने के लिए. ठीक है. So they buried dead people with his things. The cultivation of crops and domestication of animals were the important achievement of men of Neolithic age. Mesolithic age में भी they started domestication, but in Neolithic age also they started domestication of animals like cow, sheep. ठीक है, वो सब एनिमल्स जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे थे उनकी डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया. एंड दे स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस. ओके. As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life. Now he started growing crops and there would be no need to search here and there in search of food. ठीक है. तो मूव करने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें इधर उधर फूड सर्च करने के लिए, क्योंकि वो खुद का फूड ग्रो कर रहे थे. सो दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ. उन्होंने एक जगह पर सेटल होकर जीना स्टार्ट कर दिया. एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स देन वी नीड टू कीप देम सेफ. ठीक है, उनकी टेक केयर करनी पड़ती है हमें क्रॉप्स की, तो इसके लिए हमें उसी एरिया पर सेटल होना पड़ता है. तो सेम उन्हें भी लगा कि क्रॉप्स को ज़रूरत है टेक केयर की, सो दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ देयर. ओके. द सेटल्ड लाइफ गिव बर्थ टू इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग फैमिलीज. ओके. जब वो एक साथ रहने लगे तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर अब हमारा कोई अपना होना चाहिए. देयर मस्ट बी समवन विद देम वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स. तो दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ एंड दे गेव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. Due to the availability of time and opportunity, man developed new skills. He invented the sickle for cutting crops and grass, axe for cutting trees, grinding stone to grind the grains. अब उसने क्या किया, जब वो सेटल्ड लाइफ जी रहा था तो देर इज नो नीड टू मूव हियर एंड देयर. ठीक है, तो अब उसका टाइम स्पेयर हो गया. ही हैड लॉट ऑफ टाइम, सो ही स्टार्टेड मेकिंग न्यू थिंग्स. नई चीज़ों को डिस्कवर करना स्टार्ट किया, उसने बनाना शुरू किया. तो इसमें उसने क्या इन्वेंट किया, ही इन्वेंटेड सिक्कल. ठीक है, फॉर कटिंग क्रॉप्स. सिक्कल मीन्स इस तरह का एक टूल होता है इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो दैट इज सिक्कल. उसने सिक्कल बनाया कि वो क्रॉप्स को कट कर सके. एक्स मतलब कुल्हाड़ी बनाई जिससे वो ट्रीज को कट कर सके. ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड ग्रेन्स, जिसको हम चक्की बोलते हैं, उस तरह के उसने टूल्स बनाए कि वो अपने ग्रेन्स को ग्राइंड कर सके, उसको पीस सके. ठीक है. ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग. अब उसके पास टाइम था तो उसने निटिंग करना, बुनना स्टार्ट कर दिया, वीविंग करना स्टार्ट कर दिया कि क्लोथ्स बनाना उनसे, कॉटन से. ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसने करनी स्टार्ट कर दी. ही स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स विद वूल एंड जूट. ही कार्व्ड लिटिल स्टैचू फ्रॉम इवोरी एंड बोन. नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग ज्वेलरी, और ज्वेलरी में वो स्टैचूज और थोड़ा सा कार्विंग करना स्टार्ट कर दिया उसने. ठीक है, स्टैचूज बनाना, टॉयज बनाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट की. ठीक, कि अपने टाइम को, जो स्पेयर टाइम था उसे यूटिलाइज किया. एंड ही स्टार्टेड कार्विंग ऑन द इवोरी एंड बोन्स. इवोरी मैंने आपको बताया कि जो एलिफेंट टस्क होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, तो वो चीज़ इवोरी होता है. और बोन्स, जो हंटिंग करते थे वो जिन एनिमल्स की, उनकी बोन्स पर भी उसने कार्विंग करना स्टार्ट कर दिया, डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया. Settled life also initiated religious practices.
द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब जब सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की उन्होंने, तो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड्स. जो भी उनको हेल्प करता था या लगता था कि जो नेचर है वो हेल्प कर रही है, तो जैसे लाइक अर्थ, दे वर्शिप्ड अर्थ लाइक अ मदर. ठीक है, उन्होंने अर्थ की वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. और देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग सन. तो इस तरह से जो नेचुरल थिंग्स थी उन्हें वर्शिप करना स्टार्ट किया उन्होंने. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने इन्वेंट किया, दैट इज व्हील. इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन. सबसे सिग्निफिकेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक इन्वेंशन हुई, दैट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील. They used wheel for other activities like spinning and pottery. Spinning means जो हम कॉटन से थ्रेड बनाते हैं. बहुत से आप बच्चों ने चरखा देखा होगा, नहीं तो गांधी जी का चरखा याद होगा आपको. ठीक है, दैट इज स्पिनिंग व्हील. तो स्पिनिंग करने के लिए वो व्हील को यूज करते थे. पोट्री के लिए ही यूज्ड व्हील लाइक दिस. ओके, एंड ही मेड स्लेज एंड चैरिट्स. स्लेज बनाई उसने टू कैरी देयर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एंड चैरिट्स मीन्स रथ बनाए, बैलगाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ों को उसने इन्वेंट किया विद द हेल्प ऑफ व्हील्स. उसने ये सब चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इजीली मूवमेंट हो सके. द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पॉटरी. In the beginning, the handmade pots were dried in the sun and used. Starting में क्या करता था वो? Pots बनाता था और उसको sunlight में dry कर लेता था and he just used that pots. ठीक है? After that he came to know कि if the earthen pots were baked in fire, then they become more better. ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर उन्हें बेक किया गया तो. ठीक है, सो ही स्टार्टेड बेकिंग द पॉट्स. उनको आग में बेक करना स्टार्ट किया, फायर में बेक करना स्टार्ट किया. एंड उनसे उसमें शाइन भी आई और ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई. ठीक है, वो ड्यूरेबल हो चुके थे अब. सो दे स्टार्टेड डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स और विद कलर्स विद लीव्स. ओके, अलग अलग चीज़ों को कार्विंग करना स्टार्ट किया. जैसे आजकल हम अपने अर्दन पॉट्स जो होते हैं, घड़े जिसको हम बोलते हैं, उन पर देखते हैं डिज़ाइनिंग डिफरेंट टाइप की होती है. तो सेम जो न्यूलिथिक मैन था उसने भी उस चीज़ पर कार्विंग, फ्लावर्स पॉट्स पे और एनिमल्स की शेप्स और डिफरेंट टाइप को ड्राइंग, लीव्स, अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी टू मेक इट ब्यूटीफुल. ओके, इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन kilns that make discovered that metal is produced when some ore melts. अब और होता है जो रॉ मटेरियल है. ठीक है, मेटल का जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड और, आयरन और, जिससे हमें आयरन मिलती है. ठीक, सो दे जस्ट ऑब्जर्व दैट कि इफ वी मेल्ट द और देन वी गेट द मेटल. अगर हम किसी भी और को या किसी पत्थर को, किसी रॉ मटेरियल को हम मेल्ट करते हैं आग में, तो हमें उससे क्या मिलता है? मेटल्स, डिफरेंट टाइप की मेटल्स मिलती हैं. किल्न्स होता है बेटा भट्ठी, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आग जलाकर हम बेकिंग करते हैं. ठीक है, दैट इज किल्न. तो मैन ने ये डिस्कवर किया कि जब हम उस किल्न में किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी रॉक को हम मेल्ट करते हैं, वो जलती है और मेल्ट हो जाती है, देन वी गेट द
मेटल्स, और अलग अलग टाइप की मेटल्स उन्होंने डिस्कवर की थी। तो फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर की दैट इज कॉपर। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। द स्टोन एज केम टू एन एंड। अब जब मेटल मिल गई उन्हें तो वो स्टोन को क्यों यूज करेंगे, सो दे स्टार्टेड यूजिंग दैट मेटल। उन्होंने कॉपर को यूज करना स्टार्ट कर दिया एंड दिस एज इज नोन एज मेटल एज। अब इस एज को हम मेटल एज कहते हैं। जब उन्होंने मेटल के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मेटल के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज ये बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उस एज को हम मेटल एज कहते हैं, राइट। एंड द पीरियड इज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड। इन दिस चैल्को मीन्स कॉपर। अब इस पीरियड को हम चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं और चैल्को का मतलब है कॉपर। ओके, तो उन्होंने मेटल डिस्कवर की थी। फर्स्ट मेटल कौन सी थी? द फर्स्ट मेटल इज कॉपर एंड दैट्स व्हाई द एज इज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड। ओके, एंड आफ्टर दैट बहुत सी अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई अलग अलग पार्ट में। जो न्योलिथिक एज तक का टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसा था, बट उसके बाद न्योलिथिक एज से जो फर्दर न्यू डेवलपमेंट्स हुई वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम पर हुई। ओके, सो वी विल रीड दीज डेवलपमेंट्स इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। सो इन दिस चैप्टर दैट्स इट। आपने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया? वी हैव रेड अबाउट पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, Neolithic age, and the last one is Chalcolithic age, means copper age. Okay, so that's it for today. Thank you for listening. Bye.